Hello everyone, I hope you all are safe and healthy. Today, in 12th Commerce Accountancy Part 1, we are going to start the new chapter Valuation of Goodwill. Now, this is the first part of the chapter. So, here are the marks allocated as per the board's blueprint. The total marks allocation for this particular chapter is 6 marks. Okay. Total marks are 6 marks. From section 1, one MCQ is going to be asked in the board examination and you can score 1 mark from that. In section B, there is one very short question, VSQ, is going to be asked and you can score 1 mark from that also. And in section D, one example that is for 4 marks is going to be asked. So ultimately from this particular chapter you can score 6 marks. मतलब ये चैप्टर में टोटल मार्क्स एलोकेशन बोर्ड ने कितना किया है 6 मार्क्स किया है. जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि there are 4 marks allocated for that chapter. For this particular chapter they have allocated 6 marks. अब इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, सेक्शन डी में एक एग्जाम्पल आएगा जो 4 मार्क्स का होगा. दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इजियर. तो ये भी आप 4 आउट ऑफ 4 आराम से स्कोर कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. पूरा वीडियो आखिर तक देखोगे, यू आर एबल टू स्कोर 4 मार्क्स, दैट इज फॉर श्योर. नाउ व्हाट इज कंसिडर एज अ गुडविल? Over a period of time, a well-established business develops an advantage of a good name. अगर आपने बहुत सारे सालों से कोई चीज पे बहुत सारा काम किया है, so ultimately your firm, your partnership firm or the company or anything is going to make a good name, and that is the advantage for the business. Okay. Then the reputation, ultimately the goodwill means the reputation and the worldwide connectivity and the business connections it is going to be made, and that definitely will increase the benefits to the business. अगर आप बहुत सालों से कोई एक जगह पे काम कर रहे हो, आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो, यू हैव अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, आपके बिजनेस की रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आपके बिजनेस कनेक्शंस भी अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बेनिफिट ही करने वाली है. तो अगर ये बेनिफिट करेगी और वो बेनिफिट अगर मॉनेटरी वैल्यू में कंसीडर किया जाए तो उसका एडवांटेज हमको मिलता है, और वो एडवांटेज को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि अगर मुझे कोई एक मोबाइल फोन लेना है, तो ये मोबाइल फोन लेना है तो मैं यहाँ से कहाँ पे जाऊंगा, अगर कोई भी मोबाइल फोन लेना है तो I will go on the shop where the most reputed shop, कि जहां पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ऑलमोस्ट सारे अलग अलग कंपनीज के मोबाइल एक ही जगह पे मिल जाएंगे. सो दैट शोज द गुडविल ऑफ द फर्म. यस और नो? ये क्या बताती है, उस पर्टिकुलर बिजनेस की कुछ शाख है या तो फिर प्रतिष्ठा है, वो चीज यहाँ पे दिखाती है. अगर ये चीज आपके बिजनेस में अचीव हो गई, then you can earn so much money. Okay, so ultimately what we are doing over here, we are considering the revaluation of assets and liabilities. जो भी assets है, जो भी liabilities है, हम उसकी क्या करेंगे, revalue करेंगे, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक फर्म की गुडविल कितनी होगी वो डिसाइड करेंगे. Okay, basically the firm has two type of different assets, one that is non-current assets and second is current assets. The non-current, that means the fixed assets. So we are going to calculate everything over here. So there are 4 type of different methods that we have shown already in the different slides. Next, what is the meaning of goodwill? So here are 2 different definitions given for the goodwill. First one, that is goodwill is an intangible asset. You know that. What is intangible? Intangible, that means you cannot touch them, you cannot feel them, but the things has some existence and through that you can earn so much of money. तो पहली तो बात क्या हो गई, ये एक intangible asset है which shows the reputation of a firm in the market. ये चीज क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि आपकी बिजनेस में आपकी फर्म की एक्चुअल मार्केट में रेप्यूटेशन कितनी है. ओके, तो उसे क्या बोला जाएगा, गुडविल बोला जाएगा.
Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. अब ये रेपुटेशन तो है, ये तो आपको पता चल गया, पर रेपुटेशन कौन से सेंस में है? ये वो सेंस में है कि ये जो प्रॉफिट अर्निंग होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, अगर हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये मेरी कोई एक कंपनी है और ये कंपनी के बाद मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, तो वो जो प्रॉफिट होता है उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा, मोर देन दी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मेरे फर्म की गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। पता चला? ओके, नेक्स्ट, what are the factors which are going to affect when we are valuing the goodwill? So basically there are 6 different factors. First one, that is nature of business. आपके बिजनेस का नेचर कैसा है? नेचर मतलब कि वेदर इट इज अ प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस और नॉट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हो पर उसमें से कंटिन्यूअस वे में आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज द वन। सेकेंड, दैट इज लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कौन सी जगह पे आपका बिजनेस डाला हुआ है, वहां पे आपको वैसा कस्टमर बेस मिल रहा है कि नहीं। थर्ड वन, दैट इज पीरियड ऑफ बिजनेस, from how since how long you are working, how many years you have worked for this particular firm, okay, कितने सालों से आपने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेहनत की है। देन दी मार्केट सिचुएशन, मार्केट में एक्चुअली आपके बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, मोनोपोली मार्केट है, कंपटीशन मार्केट में है कि नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। देन द एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजर, हाउ द मैनेजर इज एफिशिएंट, you know, some of the people who are active partners, they can earn more money just by sitting on these particular desk of the business, okay। तो अगर कोई अच्छा बंदा है, अच्छा काम करता है, तो उसकी रेपुटेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस की गुडविल अर्न हो रही है। नेक्स्ट वन, दैट इज अदर स्पेशल बेनिफिट्स। नाउ व्हाट इज अदर स्पेशल बेनिफिट्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस का ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सारी जो चीजें हैं, दिस आर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओके। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस 6 factors when you are valuing the goodwill. Let's see that in detail. First one, that is nature of business, okay। So goodwill exists when the firm earns more profit than the expected one. That we have already seen in the definition. Second definition, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या लिखा था? उसमें यही लिखा था, if you are going to earn more profit than the expected, then goodwill will be there. अगर profit जो आप expect करते हो उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? गुडविल बोला जाएगा। ये शो करता है कि अल्टीमेटली फर्म की एक गुडविल अच्छी सी है, ओके। नाउ इफ योर बिजनेस इज स्टेबल इन नेचर, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअस वे में अर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है, स्टेबल है, देन देयर विल बी मोर गुडविल टू द बिजनेस। तो हम पहले पॉइंट में क्या देखेंगे? कैसा नेचर है बिजनेस का, फ्रॉम पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकेंड वन, दैट इज लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। नाउ यू नो दैट अल्टीमेटली कस्टमर इज अ किंग, और हमें बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए? नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, नंबर्स ऑफ कस्टमर्स चाहिए। इफ वी गॉट हाईएस्ट और हैविंग द हेवीएस्ट कस्टमर ट्रैफिक, देयर विल बी प्रॉफिट अर्निंग, दैट इज फॉर श्योर। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस की लोकेशन अगर आप अच्छी सी जगह चूज कर लो तो वहां से आपको बहुत अच्छा कस्टमर ट्रैफिक बेस मिल जाएगा, ओके। इट मीन्स more and more customer will go to your shop, they will purchase something from your shop, and ultimately if they are going to purchase something from the shop and if the customers are more compared to the different location, there will be increase in the profit। मतलब कि अगर आपकी कंपनी में या तो फिर आपकी फर्म में अगर कोई आता है और वहां से वो कंटिन्यूअस वे में प्रॉफिट जो अर्न करेगा वो उस बेसिस पे करेगा कि कंटिन्यूअसली वो वहां पे आके कस्टमर ट्रैफिक होगा, वहां से कुछ परचेज करेगा और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। सो डेफिनेटली देयर विल बी द गुडविल फॉर द फर्म। नेक्स्ट वन, दैट इज पीरियड ऑफ बिजनेस, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग।
इट शोज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, आप कितने सालों से ये बिजनेस यूनिट रन कर रहे हो। ओके, सो इट शोज द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, जैसे कि आप बहुत सारे सालों से काम कर रहे हो तो कस्टमर्स आर फेमिलियर विथ यू, they know how you are working, what is your working style, as well as you have so many long term relations with the customers, आप बहुत सारे सालों से काम कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे कस्टमर्स से, so this consider as a period of business, so this is also affect when we are valuing the goodwill. Fourth one, that is market situation. As I have said, if the monopoly condition is there, if the limited competition is there, then ultimately you are going to earn the good profit. जैसे कि monopoly situation में क्या होता है, there is only one seller and so many buyers. Okay, one seller and numerous buyers, this is the first characteristics of monopoly market. इट मीन्स एक ही सेलर होगा और बहुत सारे बायर्स होंगे। अब एक सेलर है तो कस्टमर कहाँ पे आएगा, आपकी शॉप पे ही आएगा। अगर आपकी शॉप पे ही आएगा तो आप प्रॉफिट तो ऑन करने ही वाले हो, क्योंकि पूरे मार्केट में आप ही एक तो सेलर हो। ओके, सो मार्केट सिचुएशन विल ऑल्सो अफेक्ट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल। नेक्स्ट वन, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजर। Now, you know that some of the managers or some of the management are so much efficient and cost effective. जैसे कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो वहां पे सिर्फ क्या करता है, आके बैठता है तो उसके नाम से और उसकी रेपुटेशन से ही बिजनेस में बहुत अच्छा गुडविल जनरेट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है और कॉस्ट जो है फर्म की वो कम हो रही है। So that is also considered as a profit increase in the valuation of goodwill. Okay, तो ये चीज भी कंसिडर की जाएगी जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो। एंड द लास्ट वन, दैट इज सिक्स, other special benefits. Now what is other special benefits? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी चीजें तो आपने कर ली कि आपने पहला देख लिया कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, लोकेशन क्या है, पीरियड ऑफ बिजनेस क्या है, एक्चुअल बिजनेस की मार्केट सिचुएशन क्या है, और लास्ट वन, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। अगर मैनेजर एफिशिएंट है देन यू आर गोइंग टू अर्न द गुडविल। बट अदर स्पेशल बेनिफिट्स आर, फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस के पास कोई एक ऐसा लाइसेंस है, कोई ऐसी पेटेंट है या तो फिर ट्रेडमार्क है विच विल हेल्प यू टू अर्न मोर प्रॉफिट, जो आपको क्या मदद करेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगा। सो दैट इज अगेन अ गुड signal to the business. Okay, so it will increase, definitely it will increase the valuation of the goodwill. So these are the factors which will affect the goodwill. Next one, what is the necessity of the goodwill valuation? अगर हम गुडविल बनाते हैं या तो फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो क्यों करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? So there are basic these 5 reasons. You have to remember all of this because this was asked in the 1 marks very short question in the board examination. I have bifurcated that in 5 different points. तो देख लो कि ये क्या है और क्यों हमें जरूरत पड़ती है गुडविल वैल्यूएशन करने की। तो पहला पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज होगा, मतलब कि 2 पार्टनर्स थे उसकी जगह पे 3 पार्टनर्स आए, या तो फिर 3 पार्टनर्स से उससे कम होके 2 पार्टनर्स हो गए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं या तो फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। पहले जो हम थे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। On that time we are going to calculate the goodwill. Then second point, that is admission of a partner. जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, on that time we are also calculating the goodwill of the business. Next one, that is retirement of a partner. Now what is called a retirement of a partner? अगर कोई पार्टनर कोई एक एज अटेंड कर लेता है और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये बिजनेस में से अभी निकलना है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिटायरमेंट बोला जाएगा। तो जब भी आपका कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है देन ऑल्सो यू आर कैलकुलेटिंग द गुडविल फॉर द फर्म। नेक्स्ट वन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। जब आपका पार्टनरशिप फर्म है वो
पार्टनरशिप फर्म की जगह पे क्या बन जाता है, कंपनी बन जाता है। कंपनी दैट मीन्स द कंपनी मीन्स अ कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड द कंपनीज एक्ट 2030। तो ये जो कंपनीज एक्ट के अंडर आप ट्रांसफर कर रहे हो आपकी कंपनी, तो ये जो कन्वर्जन होता है उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यू करते हैं। एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन दैट इज अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अमालगमेशन दैट मीन्स when there are two different businesses and they merge together, दो अलग अलग बिजनेस है और दोनों साथ में हो जाते हैं और एक ही बिजनेस बन जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, amalgamation of a partnership firm. So on these 5 points, if you have any kind of doubt, just make that in comment section, just give the comment of that. So if anything among these five is going to be happen in the business, you have to calculate the goodwill valuation. Okay, पांच में से कोई भी चीज हुई आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म का गुडविल काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, so what are the methods for the valuation of goodwill? So basically there are four different methods for the calculation of goodwill. First one, that is average profit method. Second is weighted average profit method. Third, that is super profit method. And fourth one, that is capitalization of profit method. ये चार मेथड्स के सम आपको करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट और सेकंड तो एकदम इजी सम है जो एक सिंपल एक ही लेक्चर में आपके खत्म हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ हैव 5 और 6 स्टेप्स, तो आपको ये स्टेप्स अगर याद रह गए तो आप इजीली 4 आउट ऑफ 4 स्कोर पर कर पाओगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, सो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टू फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट गिवन इन इयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या करेंगे, सारे जो जितने भी साल दिए होंगे उसका टोटल लिखेंगे और उसकी जो प्रॉफिट है वो अमाउंट लिखेंगे और उसका टोटल कर देंगे। टोटल से हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ इयर्स, हाउ मेनी इयर्स आर देयर, इफ देयर आर 5 इयर्स 2 इयर्स, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, उसके अंदर डिवाइड करेंगे और उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये डेफिनेटली इयर्स में दिया होगा, एग्जांपल में ही दिया होगा, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जो है उसके अंदर इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। ये मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। जस्ट सी द एग्जांपल, इफ द पास्ट 5 years द एवरेज प्रॉफिट इज 1,20,000, ये आंसर मिल गया फर्स्ट स्टेप का। एवरेज प्रॉफिट आपको क्या दिया है, 1,20,000 दिया है। 3 years ऑफ परचेज आर रिक्वायर्ड, 1,20,000 एनुअल प्रॉफिट फॉर अ न्यू बिजनेस। अंडर दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी 1,20,000 into 3। क्यों यहाँ पे लिखा है 3 years are required, so your firm's goodwill is 3,60,000। ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, ये आपका हो गया पहली मेथड। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, तो उसमें अगर ये कंसिडर किया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द सम एज पर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें आपको क्या करना है, जस्ट प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसके अंदर आप लिखोगे ईयर्स 2013-14, ऐसे जो 4-5 आपको ईयर दिए होंगे वो ईयर लिख दोगे, उसके सामने उस पर्टिकुलर ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ है तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे। वेट लिख दोगे, वेट मतलब क्या, फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4th, फिफ्थ ईयर के लिए 5th, ऐसा वेट लिख दोगे। फिर आप क्या करोगे, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करो। That means you are finding out the weighted profit. Here is the weight, here is the profit. You are multiplying these two, this one and this one. So 2 multiplied by 3, you will get over here the answer. Okay, and finally you are making the total of it. तो ये दो टोटल आपको काम लगेंगे कैलकुलेशन के लिए। So what is the formula? Weighted average profit is equal to total weighted profit, means here total weighted profit divided by total weight.
Total wealth, that means 1 plus 2 plus 3 plus 4, that means 10. If plus 5 is there, then it will be 15. If plus 6 is there, then it will be 21. Okay, clear? तो ये क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल की क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. कितने साल, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में भी दिया था कि मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऐसे इसमें भी क्लियर दे देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और 5. You have to calculate that. On that basis you are going to generate the goodwill in the business. So this is the second method. Now method number 3 is super profit method. Now what is called as super profit method? So there are different 6 steps. On that basis you have to calculate super profit for the firm. So first step, that is you are going to calculate the capital employed. अब capital employed आपको कैसे मिलेगा, total assets minus total external liabilities. Total external liabilities. Okay, on that basis you are going to calculate the capital employed. That is the first step. Second one, that is expected rate of return. This will be given in the example. ये आपको दिया होगा, उसमें परसेंटेज दिए होंगे. नेक्स्ट वन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. इसमें क्या करना है, जो स्टेप 1 आया कैपिटल एम्प्लॉयड का, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न स्टेप 2 से और डिवाइड बाय 100. नेक्स्ट आएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, वो आपको दिया होगा. सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, you have to calculate the difference between the average profit and the expected profit. That means step number 4 minus step number 3. Okay, and finally last one, that is goodwill, means super profit. That means step number 5 multiply by number of years of purchase. ये आपको मिल जाएगा. और आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जांपल में डायरेक्ट ऐसा दिया जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, नेट असेट्स भी यूज कर सकते हैं. तो अगर डायरेक्ट नेट असेट्स का आंसर ही दे दिया है तो आपको सीधा स्टेप मिल गया, तो आपको टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज करना ही नहीं है. सो दिस इज द थर्ड मेथड. नाउ हियर इज द फोर्थ मेथड, फोर्थ एंड द लास्ट वन. नाउ इन दिस मेथड you have to again create a statement. फर्स्ट स्टेप तो सेम ही आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट असेट्स या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड. सेकेंड स्टेप भी सेम है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें दिया होगा, जो आपको परसेंटेज में है वो वहां पे लिख देना है परसेंटेज का डिवाइड करके. देन द थर्ड वन, दैट इज एवरेज प्रॉफिट. वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. फोर्थ, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. So now what is capitalized profit? So you have to apply this formula over here. Average profit multiply by 100 divide by expected rate of return. That means step 2. तो step 2 में जब आपको expected rate of return percentage में दिया है वो आप यहाँ पे लिख दोगे. And the fifth step, that is goodwill, means the difference between the capitalized profit and the capital employed. That means the difference between the step number 4 and the step number 1. Whatever the amount you are going to get over here will be considered as your goodwill. See the note over here. If the answer of step number 5 is 0 or negative, अगर ये जो है यहाँ पे अगर हम माइनस करते और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आपकी जो है वो 0 आ गई या तो फिर नेगेटिव आ गई, then the goodwill for that particular firm does not exist. उसके अंदर goodwill आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, उसकी goodwill कुछ भी नहीं होगी. That's all for today. I hope you have seen everything in the lecture. अगर आपको कोई भी डाउट है please mention that in comment section. I am making the videos for the standard 11th and 12th commerce, economics and accountancy. Please like, share and subscribe to the channel. Share it to the maximum people who are studying in standard 11th and 12th commerce. Please press the bell icon to get notified whenever I am uploading the new videos. From the next session in part 2, I am starting with the first method, that is your average profit method. Please note down all the formulas into your notebooks. Thank you so much. Jai Hind.